सो ओपनिंग सलामी बल्लेबाज के रूप में मानसा और पायल. Mansa and Payal will be the opening batsmen. Please welcome them with a big hand as they go to make and take their positions. हमारे अंपायर्स सतीश और अमोल अपने पोजीशंस लेने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और सलामी बल्लेबाज के रूप में मानसा तैयार स्ट्राइक लेने के लिए. और बाउंड्री वॉरियर्स के कप्तान गरिमा गेंद फेंकने को तैयार. हमारे बहुत ही उम्दा विकेट कीपर सुनील बहुत ही स्टाइलिश तरीके से खड़े होकर फील्ड सेटिंग में कप्तान का सहायता करते हुए. और मैच की पहली गेंद गरिमा की तरफ से बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए बल्लेबाज को पूरी तरह बीट किया. और अब दूसरी गेंद ये भी उतना ही अच्छी गेंद. मानसा दोबारा बीट होते हुए फिर से तैयार तीसरी गेंद को खेलने के लिए. और इस बार भी गेंद बल्ले का भीतरी किनारा को छूते हुए सीधे सुनील विकेटकीपर के हाथों में. चौथी गेंद और ये भी बहुत ही अच्छी गेंद थी. गरिमा गेंद की लाइन को बड़ी अच्छी मेंटेन करते हुए रेडी फॉर द फिफ्थ वन. एंड she gets the fifth ball also well past the batsman. And she gets to finish the over, a maiden over, the first over by captain of Boundary Warriors, Garima, a maiden over. शेरी दूसरे ओवर की गेंद फेंकने को तैयार और पायल ठीक से गेंद की लाइन को नहीं समझ पाई. और अब दूसरी गेंद, ये गेंद भी थोड़ी लेग स्टंप के बाहर थी. बहुत ही अच्छी गेंद. बैट्समैन ने किसी तरह से उस गेंद को खेला लेकिन कोई रन नहीं. और इस तरह पहली विकेट खो दिया है डीएमएस कॉन्करर्स ने. उन्होंने रन लेने की कोशिश की, थोड़ी देर से और थोड़ी धीरे से भागी है पायल.
और इसके वजह से रन आउट। मानसा की तीसरी गेंद, खेलने को तैयार, उन्होंने अच्छे से कनेक्ट किया, लेकिन एक पहला रन मिला है डीएमएस कॉन्करर को। बाउंड्री वॉरियर्स की तरफ से थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ। सूरज की चमक ने उनकी आंखों में बहुत बुरी तरह से चमका दिया, और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से लेग साइड में मिड विकेट की तरफ खेल दिया मानसा ने और चुरा लिया दूसरा रन। और इसके साथ ही दूसरा ओवर भी समाप्त हुआ। तो पहले 2 ओवर में DMS Conquerors, they have scored 2 runs, so 2 runs, 2 overs. And now there's a little change in the wicket, and we have the 2 boys. Chaitanya going to take the strike with Ravi Raj as the runner. So now we have 2 very seasoned batsmen, Ravi Raj and Chaitanya, and they are ready to face Manish. Manish is now getting ready with his run-up. He has taken steps to measure his run-up. He moves a few fielders to the long on side, and the mid-wicket fielder moves back closer to the boundary. Manish with his first ball, very, very well played, and that goes for a boundary. It was a very good late cut by Chaitanya. And suddenly there is a lot more seriousness now in the ground as Chaitanya gets ready to face his second ball. Wow. And this goes for a 6. Chaitanya picks the ball from the good length and lifts it over the mid-wicket for a 6. This is the first 6 of this match. Great timing, great position, and now the third ball. And this goes up in the sky once again and crosses the boundary with another 6. Back-to-back 6 by Chaitanya. Manish now ready with his 4th. Very well played, and this is pushed towards the square leg for a 4. Wow, what an over. The first ball 4 followed by 2 sixes with another 4 in the 4th ball of the first over by Manish. And this goes out. It's definitely a wide ball. Umpire ka wide ball ka ishara. Manish अपनी लाइन के बारे सोचते हुए थोड़ा सा अपने ही बालों पर हाथ फेरा। खैरियत है। और ये बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी। लेग स्टंप पर टपका खाई, जिसे चैतन्य ने धीरे से फ्लिक करने की कोशिश की। कोई रन नहीं, और ये इस ओवर का शायद आखिरी गेंद। और चैतन्य ने इसे धीरे से प्लेस किया
अपने स्क्वायर की तरफ और भागकर 1 रन चुरा लिया। 3 ओवर 24 रन, 24 in 3 overs, and there is a loss of only 2 wickets. And with this, Sameer Sheikh, with a very, very stylishly managed hair, measuring his run up. Sameer gets some extraordinary cheer from the crowd. And the first ball is actually a wide one. There is a lot of energy in the ground, and Sameer with his second ball. Excellent ball, and there is a chance, and taken. Wow. What a lovely catch taken by की अगली गेंद, और ये बहुत ही ऊंचा उठा दिया है, और ये समीर ने कोई गलती नहीं की। समीर ये कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की, और इस तरह देवेश वापस पवेलियन की ओर। देवेश बहुत ही मायूस नजर आते हुए।
और हमारे अगले बल्लेबाज एफाज तैयार। समीर की अगली गेंद, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक रन के लिए बॉल को ऑफ साइड में खेला, और इसके साथ चौथे ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति पर 34 रन और चंकरस ने 4 विकेटें खो दी हैं। 34 for 4 with and Manish, excellent ball, very defensively played by Hafez. हाफिज ने गेंद को बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से खेला, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाते हुए अंदर की ओर आई, और इस बार रविराज बहुत बुरी तरह चूके, लेकिन उन्हें एक रन फिर भी मिल गया। और शेरी की बहुत ही अच्छी फील्डिंग, उन्होंने 3 रन कम किए, बचाए। वेरी गुड स्क्वायर कट, बहुत ही अच्छा स्क्वायर ड्राइव था ये एफाज का, बहुत ही अच्छा स्क्वायर ड्राइव था, बहुत ही उम्दा टाइमिंग, 4 रन, और इसके साथ स्कोर बढ़ते हुए 40 रन, 40 with the loss of 4 wickets and the 5th over in progress. Manish very encouraged and ready to bowl. और ये भी बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही धीरे से एफाज ने इसे स्क्वायर की तरफ खेला और 1 रन चुरा लिया भागकर। इसके साथ 41 for 4 and the 5th over in progress. हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन पेश की और उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा, गुड गोइंग रवि, गुड गोइंग, वेरी वेल प्लेड। और एफाज तैयार मनीष के अगले गेंद को फेस करने के लिए। मनीष की अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ा सा वाइड, इसलिए अंपायर का वाइड का इशारा, और इसके साथ अब स्कोर 43 for 4। मनीष की शायद ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर का। बहुत ही अच्छी गेंद, सीधे मिडिल स्टंप पर टप्पा खाकर थोड़ी से बाहर की ओर निकली, और इसके साथ अंपायर का ड्रिंक्स का इशारा, इज इट ड्रिंक्स, ड्रिंक्स का इशारा। पांच ओवर की समाप्ति पर डीएमएस कॉन्करर्स ने 43 रन्स बनाए हैं 4 विकेट खोकर, और हमारे तरफ से बाउंड्री वॉरियर्स ने, फील्डर्स बाउंड्री वॉरियर्स से की तरफ से समीर ने 2 विकेटें ली। समीर ने 1 ओवर डाला और 10 रन देकर उन्होंने 2 विकेट चटकाए, और मनीष 2 ओवर में उन्होंने 31 रन दिया है और अभी तक उन्हें कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। आज के इस फाइनल के दरमियान हमारे कैमरामैन
विशाल ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करते हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब अपने घरों में और ऑफिस के टीवी पर भी ये मैच का लुत्फ जरूर उठा रहे होंगे। बीबीएल का ये फाइनल का मुकाबला, और अभी 1/4 मैच खत्म हो चुका है, 3/4 बाकी है। बाउंड्री वॉरियर्स के तरफ से नवीन तैयार, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं नवीन, और सामने रविराज तैयार, और ये वाइड और नो बॉल। Is hit for a 6. Afas picks up the ball in full toss and plays it over the mid wicket for a 6. Naveen. And another one. There is a big chance. Afas played it on the long off side. There was a little chance of getting Afaz's wicket, but the fielders were a little far away, so they couldn't make it. Ravi Raj ready. And he plays it exceedingly well, picks up the ball in front of the wicket as a full toss and hits it out for 6 in the deep long leg side. With that, the score moves to 64 for 4 with 6 overs bowled by Boundary Warriors. आ गए समीर शेख. Sameer, who has taken 2 wickets in his first over, is back with his second over. And in his first ball, Afaz gets just 1 run. Very good ball, very good line and very good length as well. Afaz does manage to connect the ball, however, is satisfied with just 1 run. Ravi Raj ready to face the second ball of Sameer.
And this one beats Ravi Raj. It was a very, very good slow ball. सीधे मिडिल स्टंप पे टप्पा खाई और रविराज बुरी तरह से बीट हो गए. और इसके साथ एक और जोरदार स्ट्रोक खेला है रविराज ने, लेकिन वहां पे तो आशीष थे तो रन कैसे मिलता. एक ही से मन मान लिया. कैप्टन, वाओ, वेरी गुड शॉट एंड आउट. Allowing the captain Om Prakash to take the strike. And Captain Om Prakash faces Sameer. Wow. Om Prakash आते ही ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल को लेग की तरफ खेला और उन्होंने फाइन लेग की तरफ सीधे बाउंड्री पर 4 रनों के लिए खेला. ओम प्रकाश ने अपना खाता 4 रनों से खोला और तैयार दूसरी गेंद को खेलने के लिए. बहुत ही अच्छी गेंद, बुरी तरह बीट हुए ओम प्रकाश. गेंद उनके लेग स्टंप पे थी और इसके साथ ही समीर का दूसरा ओवर समाप्त होते हुए और अब हमारे नए गेंदबाज सुहास तैयार. समीर उन्हें मशवरा देते हुए आज के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं समीर. उन्होंने 3 विकेट ली है तो उनका हक बनता है कि वो मशवरा दें. उन्होंने ये मशवरा देने की आज अपने शानदार बॉलिंग से कमाया है, ये हक कमाया है. वेरी गुड बॉल. ओहो, ये रविराज ने रविराज थोड़ा उतावला होते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बल्ला चला दिया. खुशकिस्मती से बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के पीछे सीधे बाउंड्री पर 4 रनों के लिए. और इस तरह स्कोर बढ़कर 74 फॉर 5. और ये शानदार 6 रन डीप फाइन लेग बाउंड्री पर रविराज. इस तरह रविराज का खुद का स्कोर 31 और डीएमएस कॉन्करर्स ने 80 रन पूरे किए. रविराज पूरे फील्ड का मुआयना लेते हुए. सुहास तैयार और ये भी बहुत ही शानदार 6 रन. रविराज ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेग स्टंप पे मिड विकेट और डीप फाइन लेग के बीच में खेला सीधे 6 रन के लिए. समीर, सुहास
को फिर से मशवरा दे रहे हैं। आज समीर का हक बनता है कि वो जितना मशवरा दे सके जरूर दें। अपने हक का पूरा इस्तेमाल करते हुए सुहास को, बहुत अच्छी गेंद थी ये। रविराज थोड़ा बाहर निकल चुके थे और बड़ी चालाकी से सुहास ने गेंद को काफी आगे डाल दिया ऑफ स्टंप के पीछे और बीट किया रविराज को। सुनील ने बॉल कलेक्ट किया और ये दूसरी बार रविराज की जो अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी थी उसमें वो चूक गए। सुहास को 2 डॉट बॉल्स मिले हैं। वेरी गुड सुहास, मूव्स, वाओ। एंड दिस वन, Raviraj comes forward, takes a step forward, connects the ball and gets it out of the boundary, out of the park for 6 in the long off area. Very, very good display of confident batting by Raviraj. With this, the score moves to 92 for 5 and Raviraj is now on 43. The coach of DMS Conqueror's coach has taken special permission to go and give some advice to Raviraj. And the coach, Mr. Pratik Sharma, is still trying to run out of the boundary. And with this, Manish ready for his next over. This is the 9th over in the play with 92 for 5. Manish with his third over. Wow, what a ball. Om Prakash. Manish with a fantastic line, bowls on the middle stump. A very good length ball. Another dot ball by Manish. The 9th over and the 10th over are toughest for the bowlers. Manish doing very well so far. 2 dot balls in his 9th over. Lots and lots of hope pinned on Manish by the audience. This is little offside, outside the offside, and therefore wide. Takes the score to 93 for 5 now. Manish ready with his 4th ball. And this ball, Om Prakash. Om Prakash doesn't miss this one and hits it out of the park over the long on for a 6. Very, very well played. Good timing and confident play. And this is another one. 6 followed by another 6 by Om Prakash. Om Prakash all set for playing the captain's inning. और इसके साथ DMS Conqueror 105 पर पहुंच गई है. They've crossed 100. Give them a big shout. Give them a big hand. Big shout. और ओम प्रकाश एक कदम, ओम प्रकाश ने एक कदम बाहर निकाला और ये हैट्रिक 6. ओम प्रकाश की तरफ से हैट्रिक 6.
ओम प्रकाश जी खेलते रहिए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं ओम प्रकाश जी। और ये क्या हो गया? अंपायर के डेड बॉल का इशारा। मनीष तैयार, अगली गेंद। बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के ऊपर टप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर की ओर निकली और इस तरह से 9 ओवर पूरे किए बाउंड्री वॉरियर्स ने। अब तक का स्कोर है 1-1-1, 111 रन 5 विकेट खोकर। डीएमएस कॉन्करर्स 111 रन 5 विकेट खोकर। और ये आखिरी ओवर नवीन के हाथों में गेंद और एक बार फिर से रविराज नवीन के सामने पहली गेंद खेलने को तैयार। और ये फुल टॉस पे मिड विकेट पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग की गई और इस तरह रविराज को सिर्फ एक ही रन मिला। वापस ओम प्रकाश तैयार नवीन के दूसरी गेंद खेलने को। ओम प्रकाश ने बॉल को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर उठा दिया 6 रन के लिए। इस तरह से ओम प्रकाश का निजी स्कोर 22 रन। ओम प्रकाश का निजी स्कोर 22 रन। और इस छक्के की वजह से 28। डीएमएस कॉन्करर्स अब 118 रन बना चुके हैं और ये गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी स्लो करके डाला इसे ऑफ स्टंप से थोड़ी से बाहर और ओम प्रकाश बुरी तरह बीट हुए। और ये फिर से मिड विकेट की तरफ खेला लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग। थोड़ा सा यहां पर क्रिकेट के साथ फुटबॉल का भी प्रदर्शन हो रहा है और एक इस तरह से अब स्कोर बढ़कर 1195 फॉर 5। 2 बॉल बचे हैं इस मैच में, इस इनिंग्स के लिए। और रविराज को एक लाइफ मिला। बहुत ही अच्छी फील्डिंग समीर की, उन्होंने 6 रन बचा दिया। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग्स, ओम प्रकाश फेसिंग द लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग्स। नवीन रेडी और ये सीधा 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। इस तरह से डीएमएस कॉन्करर्स ने अपनी पारी में 126 रन बनाया 5 विकेट खोकर। ओम प्रकाश नाबाद रहे, उन्होंने 35 रन बनाया 12 बॉल फेस करते हुए, जिसमें 1 चौका और 5 छक्का। रविराज नाबाद रहे, 45 रन बनाकर उन्होंने 19 बॉल का सामना किया, 2 चौके और 5 छक्के लगाए। और इसी तरह बाउंड्री वॉरियर्स की तरफ से नवीन शर्मा ने 2 ओवर गेंद की, उन्होंने
36 रन दी और मनीष ने 3 ओवर में 50 रन दिया। इस तरह से पारी की समाप्ति 126 रन बनाकर और 5 विकेटें खोई है डीएमएस। उन्होंने बाउंड्री वॉरियर्स के सामने 127 रन का टारगेट। आज के डीएमएस कॉन्करर्स के पारी में रविराज और ओम प्रकाश का शानदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने बहुत उम्दा बैटिंग की है आज। ओम प्रकाश तो मैं बोल सकता हूं कि कैप्टन इनिंग खेला है और हमारे डीएमएस कॉन्करर्स के जो टीम ओनर हैं प्रतीक जी, वो गले मिलते जा रहे हैं समीर के साथ। बहुत सही स्पोर्ट्समैन। DMS Conquerors taking the field now. And the last strategic discussion with Pratik, their sponsor, their owner. अंपायर अमोल और अंपायर सतीश।
126 का स्कोर बहुत कम नहीं होता है, इसलिए बाउंड्री वॉरियर्स के प्लेयर्स भी थोड़े नर्वस दिखाई दे रहे हैं। और आज फाइनल्स के इस गेम में डीएमएस कॉन्करर्स जो हैं वो फील्ड पे आ चुके हैं। बाउंड्री वॉरियर्स की तरफ से कप्तान गरिमा, बाउंड्री वॉरियर्स की तरफ से कप्तान गरिमा और शेरी आज की ओपनिंग बैट्समैन, ओपनिंग पेयर। और हमारे डीएमएस कॉन्करर्स की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत करेंगी मानसा। गरिमा पहली गेंद खेलने को तैयार और हमारे अंपायर्स का इशारा। अंपायर्स तैयार। गरिमा मंगूस बैट से खेलती हैं और बाउंड्री वॉरियर की गरिमा भी मानी जाती हैं। सब दोनों अंपायर ने कुछ परामर्श की और गेंद को सीधा दे दिया मानसा के हाथों। मानसा तैयार पहली गेंद फेंकने को और हमारी गरिमा के साथ बल्ले को दोनों हाथों पे उठा के रखती हैं और उन्होंने पहला गेंद खेल दिया है, कोई रन नहीं। Mansa gets the second ball, but it goes wide. And with that, Boundary Warrior gets their first run as a white ball. अच्छी गेंद थी मानसा की, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ। मानसा चौथी गेंद फेंकने को तैयार। और इस गेंद पर भी गरिमा थोड़ा चूक गई और मानसा की अगली गेंद। ये तो नो बॉल का इशारा अंपायर का और साथ में फ्री हिट। गरिमा तैयार, फ्री हिट का इशारा और गरिमा ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से खेल दिया है। डीप लेग की तरफ एक रन मिला गरिमा को। इस फ्री हिट का उन्होंने पूरा फायदा नहीं उठाया, चूक गई। और ये अच्छी गेंद शेरी को बीट करते हुए सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। मानसा की अगली गेंद और बहुत ही शानदार तरीके से
शेरी ने ये बहुत ही शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन। बहुत ही अच्छी फील्डिंग डीएमएस कॉन्करर की तरफ से। और शेरी का ये दोबारा बहुत ही अच्छा शानदार स्ट्रोक, लेग साइड पे मिड विकेट पे अच्छी फील्डिंग, और फिर से शेरी को सिर्फ 1 ही रन मिला। गरिमा तैयार, और ये शॉट फिर से मिड विकेट की तरफ, 1 रन का। इस तरह से बाउंड्री वॉरियर्स ने 5 रन बना लिए हैं अब तक। क्या हुआ? था हमारे मैच में था वो मेरा कैच उसने कैच लिया था वो। ठीक है, जर्सी चेंज करना है ना। और ये बहुत ही शानदार तरीके से गरिमा ने मिड विकेट की तरफ खेला, भागकर 1 रन चुराया, और इसके साथ अब बाउंड्री वॉरियर्स 7 रन के निजी स्कोर पे पहुंच चुके हैं। शेरी तैयार ये आखिरी गेंद खेलने को, और ये वाइड का इशारा। पायल का ये आखिरी गेंद, और अच्छी गेंद थी ये। इस तरह से 2 ओवर में बाउंड्री वॉरियर्स ने 8 रन बनाए, और इसके साथ अब मनीष और आशीष इस पारी के दूसरे तरफ से भार उठाने को मैदान में आ चुके हैं। गरिमा का बहुत जोरों से स्वागत, और शेरी का भी। अभी जो 2 बल्लेबाज क्रीज पे हैं, अभी जो दो बल्लेबाज क्रीज पे हैं, दोनों ने 100 रन बना चुके हैं। इन्होंने 100 रन स्कोर कर चुके हैं एक पारी में। आशीष ने 104 रन बनाया था, और मनीष ने 137 रन एक पारी में। दोनों सेंचुरियन बैट्समैन तैयार। कॉन्करर्स को फेस करने के लिए वॉरियर्स तैयार। अब धीरज पहली ओवर की बॉल फेंकने को, और सीधा गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। धीरज दूसरी गेंद फेंकने को तैयार। बहुत ही टेंशन हुआ पड़ा है मैदान में, और ये वॉरियर्स के बल्लेबाज मनीष ने बहुत ही तेज शॉट लगाया था लॉन्ग ऑन पे, लेकिन अच्छी फील्डिंग कॉन्करर्स की तरफ से, और इस तरह सिर्फ उन्हें 1 ही बॉल मिला। और अब आशीष तैयार इस इनिंग्स की पहली बॉल खेलने को। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद थी। ये कैच छूटा,
कॉन्करर्स के हाथों, एफास के हाथों ये कैच छूटा। बहुत आसान सी कैच नहीं थी। और ये अच्छी गेंद। बॉलिंग करते टाइम मत बोलो, डिस्ट्रैक्ट होता है। दर्शकों में भारी उत्साह और आशीष तैयार धीरज की अगली गेंद खेलने को। बहुत ही शानदार स्क्वायर कट। बहुत ही शानदार चार। म्यूजिक ले लो, यहाँ पे रख लो म्यूजिक, तो मुश्किल हो रहा है। हाँ, तुम मैनेज करो इधर से। धीरज फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए और आशीष तैयार धीरज की अगली गेंद खेलने को। बहुत ही अच्छी गेंद थी ये धीरज की। ऑफ स्टंप पे टप्पा खाकर अंदर की ओर आई। इस तरह से 3 ओवर और 19 रन हो चुके हैं। 2 सलामी बल्लेबाज वापस आने के बाद हमारे मनीष और आशीष क्रीज पर और एफास तैयार अगली ओवर के लिए। बहुत और मनीष का ये शानदार 6 रन मिड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर सीधा 6 रन एफास की पहली गेंद पर। मनीष तैयार दूसरी गेंद। ये बहुत ही अच्छी गेंद थी एफास की। मनीष ने इस गेंद को पूरा सम्मान दिया। मनीष ने इस गेंद को पूरा सम्मान दिया। फ्रंट फुट पे आए, धीरे से पुश किया और चुरा लिया भागकर 1 रन। रनिंग बिटवीन द विकेट्स is excellent between Ashish and Manish. Both are very young, energetic and very fit players. Not missing an opportunity to make quick singles. Excellent strategy at work. And with that, another good stroke on the mid-wicket side, but very good fielding by Captain Om Prakash. The ball returns very quickly into the hands of Afaz. Manish ready. Afaz with his next ball. And this time, Manish doesn't make any mistake in picking the ball a little early and sending it off the park. He picks up the ball little early and sends it off over the long on for a 6. Afaz ready. And then Manish quickly places the ball in front of the mid-wicket fielder and takes 1 run. ये काफी प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं। चौके छक्के के बाद सीधा 1 रन चुरा लेते हैं।
बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में निकल गई। और ये एक अच्छ को आउट कर दिया। आशीष के आने से, आशीष के पेविलियन में वापस आने से बाउंड्री वॉरियर्स में काफी टेंशन। एक स्टार बैट्समैन उनके आउट हो गए हैं और एक दूसरे को वो बहुत एनकरेज कर रहे हैं ये कहकर कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही। इसी बात पर मनीष तैयार। 34 for 3, 34 for 3, and Manish quickly turns it behind the leg for a 4. Very intelligent batting on part of Manish. He found no fielding there, no fieldsman there, so he pushes the ball behind the leg in deep fine leg area for a 4. Dheeraj for his next ball. And this one was a very, very good ball. Manish manages to steal 1 run, playing it and pushing the ball in the square, where it was very well fielded by the Conquerors. ये देखिए अब एफाज भी हक जता रहे हैं धीरज को मशवरा देते हुए। एफाज ने भी हक जताया, अच्छी बात है। एक शानदार मौका था रन आउट करने का, एक शानदार मौका था रन आउट करने का, धीरज चूक गए। कप्तान ओम प्रकाश आकर उन्हें काफी ढाढ़स दिया। ऑडियंस से पुकार आ रही है शांति के लिए। और ये शानदार 6 रन मनीष के बल्ले से सीधा उन्होंने बॉलर के 6 रन। बहुत ही शानदार शॉट था ये मनीष का। मनीष तैयार। और इस बार वो चूके, उन्होंने कोशिश की थी धीरे से एक लेग साइड में फ्लिक करने का और 1 रन चुराने का, लेकिन बहुत ही बुरी तरह चूके। और ये मनीष इस तरह 50 रन पूरे। 52 for 3। बाउंड्री वॉरियर्स 52 for 3। 5 रन्स, 5 ओवर हो चुके हैं और ये ड्रिंक्स का टाइम। Conquerors are also strategizing to ensure that they stop and defend the flow of runs from the Warriors side. Warriors desperately making war cry. And they are back with Manish and Samarth on the crease. Manish and Samarth on the crease, and Pratik, the owner of Warriors team, has been instructed by the umpire to leave quickly.
but he goes and chants some magical chants with his team. 75 runs to be scored in next 5 overs. It's a very steep target indeed for Warriors. But they still have Manish out there in the middle with Ravi Raj ready to bowl the next over. Ravi Raj's first ball of the innings to Samarth. And Samarth connects the ball, plays it very softly. Samarth plays the ball very softly and quickly takes a single to allow Manish to play the rest of the over. Very good strategy amongst the Warrior players. And Manish ready to face Ravi Raj. This is a wide ball, very wide of the leg stump, and rightly so, the umpire calls it a wide. Ravi with his next ball. Manish ready to smash the ball. And this is Dheeraj makes no mistake. Dheeraj makes no mistake. And taking the catch. Ravi Raj delivered a full toss to Manish, and Manish directly hits to the boundary into the hands of Dheeraj. It's been a bad knock, and Manish looks very disappointed. लेकिन ऐसा तो होता है इस खेल की दौड़ में। मनीष, अगर आप जीत भी जाओगे तो अपने पीछे रह जाएंगे। इसलिए उदास होने की बात नहीं है मनीष। आप अगर और भी रन बना लेते तो अपने पीछे रह जाते, और अगर कम बनाए हो तो शायद अपने ही वाले पीछे छोड़ देंगे। सुनील तैयार। सुनील बहुत ही डिपेंडेबल मैच विनिंग प्लेयर हैं वॉरियर्स की तरफ से, और आते ही उन्होंने अपना खाता खोला है। सुनील आते ही अपना खाता 6 रनों से खोला है। ये मैच विनर प्लेयर हैं। सुनील मैच विनर प्लेयर हैं, तैयार। $60 for 4. 61 for 4. 26 में 66 रन बनाने हैं, 26 balls more, and they have to score 66. No, it's a nail-biting match indeed. ये तो
रविराज ने बहुत टैक्टफुली इस गेंद को क्रीज में रखते हुए स्लो बॉल डाल दिया। समर्थ बुरी तरह बीट हुए, नहीं समझ पाए कहां कैसे खेलना है, और इस तरह से ये डॉट बॉल रविराज का। समर्थ तैयार रविराज की अगली गेंद खेलने को। और ये सीधा ओम प्रकाश के हाथों में मिड विकेट में, फिर भी भागकर 1 रन पूरा किया। और इसके साथ ही 6 ओवर की समाप्ति पर वॉरियर्स 62 रन्स पे हैं। 62 for 4 Warriors at the end of the 6th over. 24 balls and 65 runs to score. Required run rate is 16 runs, and Samarth getting ready to get some advice from Sunil. धीरज की अगली गेंद, और समर्थ को उन्होंने बीट किया। इस तरह से एक भी रन चुरा नहीं पाए समर्थ और सुनील। बहुत ही समर्थ बल्लेबाज, और इस तरह से 1 रन जरूर मिल पाएगा समर्थ को। सुनील धीरज की अगली गेंद का सामना करने को तैयार। मैदान में दर्शकों की भीड़ उमड़ती हुई, और शानदार 6 रन। ये शानदार 6 रन सुनील का। और एक और है सुनील। नो बॉल, नो बॉल। सुनील पूछ रहे हैं अंपायर से, और कितने गेंद बाकी हैं अंपायर साहब। ये एक अच्छा मौका था, चूके सुनील, क्योंकि ये फ्री हिट था। धीरज तैयार। $71 for 4। और ये पहला 6 रन समर्थ के बल्लों से, समर्थ के बल्ले से ये पहला 6 रन था। 77 for 4। और ये 7वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकने को धीरज तैयार। $50 runs more required out of 19 balls. और समर्थ ने इस गेंद को काफी अच्छे ढंग से खेला था लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन यहां पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग कॉन्करर्स की। फिर भी वो 1 रन चुराकर तैयार हैं रविराज के दूसरे ओवर खेलने के लिए। सुनील उन्हें मशवरा देते हुए, और अब 3 ओवर जो बाकी है उसमें
इस टीम को 49 रन 49 रन करने हैं। बहुत ही बड़ा टारगेट। समर्थ पहले ही बाहर निकल चुके थे, रविराज ने उन्हें देख लिया था। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलिंग बाय रविराज। He dropped the ball in the front, a slow ball, and Samarth failed to connect that. समर्थ तैयार, और इस बॉल को उन्होंने मिड विकेट की ओर खेला। सिर्फ एक रन। 78 for 4, 48 runs required out of 16 balls. 3 runs per ball. Oh my God! ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे कॉन्करर्स कॉन्कर करते जा रहे हैं और वॉरियर्स और ये शानदार 6 रन बहुत ही अच्छे मौके पर सुनील का। बहुत जरूरी है ये मैच को जीवित रखने के लिए। और इस जीवित शब्द से याद आया कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, जीवित और विवाहित। वेरी गुड। और ये सुनील ने ये दूसरा छक्का लगाया। बहुत ही उम्दा शॉट, और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ। $91 for 4, 14 balls and 36 runs. सुनील ने ये फिर से 6 मारा। और सुनील 97 for 4, 13 balls and 30 runs required. 13 balls and 30 runs required. "13 balls and 30 runs." और ये नो बॉल का इशारा। ये नो बॉल और इसके साथ अंपायर का इशारा फ्री हिट का। दर्शकों में बहुत उत्तेजना। 98 रन्स एंड सुनील ने 6 रन मार दिया। "12 balls and 23 runs." और इसके साथ वॉरियर्स के 100 रन पूरे। वॉरियर्स 104 for 4. वॉरियर्स 104 for 4. 8 ओवर में 104 रन। सुनील का निजी स्कोर 38। 10 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 38 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 380 है। लोगों को धोनी याद आ रहे हैं।
सुनील का खेल देखकर रांची वाले तो भाई एक ही हैं। 10 बॉल में 38 रन, 380 का उनका स्ट्राइक रेट है। समर्थ 12 रन बना चुके हैं, 10 गेंद खेले हैं, लेकिन वो एक एंकर की तरह अपनी समर्थता का पेश कर रहे हैं, बहुत ही समर्थ। $104 for 4. We have now 12 balls to go, 2 overs to go, with 23 runs to score. 23 runs to score in 12 balls. And Afaz ready to deliver the 9th over. And there is a lot of tension and excitement in the crowd. And it's a good ball. Samarth misses the first ball and it's a dot ball. 12 balls, 11 balls, 23 runs to go. 11 balls, 23 runs. And this is a wide ball. And this is a wide ball, so that gets the score to now 105. 22 runs to go to score out of 11. 2 balls per 2 runs per ball. Oh, and this is and we have Samarth walking out. Excellent catch taken by Om Prakash. This was one of the best catches of the match, of the tournament. And Om Prakash, the captain of DMS Conquerors, Captain Om Prakash, takes a very good catch, leaving a target of 22 runs in next 10 balls. Samir ready to face Afaz's ball. And Samir loses his wicket. In the very first ball. Up match. 9 balls, 22 runs. Boundary Warriors are at 105 for 6, 8.3 overs gone. You're left with only 9 balls to score 22. And we have Naveen. Ready to face Afaz. And he hits a 4, boundary. Eight balls, 18 runs. 8 balls, 18 runs. And Naveen ready to face Afaz. And this was a very good ball by Afaz. Beats Naveen quickly. 7 गेंदे बाकी है और 18 रन. 7 balls, 18 runs. 7 balls, 18 runs. And this is a wide ball, which now brings down the target to 17, and still we have 8 balls to go. And this
और नवीन इस गेंद को लेग में खेला, डीप फाइन लेग की तरफ 6 रन. And now 6 balls, 11 runs. This is the last over with a target of 11 runs. ये मैच एक कांटे की धार पे खड़ी है. Very, very interesting, very, very exciting, and very, very fighting game indeed. The Conquerors gave a target of 127 to the Warriors and did a very good start. Like typical cricket match, the finals of BBL. The finals of BBL has become extremely exciting. You can see the audience equally tensed as the players of both the teams. A very rare sight to see here in the Embassy Tech Zone, where the audience as well as the players are equally tensed to defend that. So now the captain, captain, Om Prakash. The captain, Om Prakash, is now ready. I can hear the screams from the audience. Pressure Made, pressure Made. दोनों टीम प्रेशर मध्ये. कैप्टन ओम प्रकाश तैयार और सुनील अपनी जलवा तैयार. सुनील तैयार, बहुत ही शानदार उन्होंने 6 रन मारा और ये मैच जीत गए बाउंड्री वॉरियर्स. सुनील मैच विन और उन्होंने 12 बॉल में 50 रन बनाए, 8 छक्के. सुनील का डिमांड है थोड़ा म्यूजिक दे दिया जाए. Let the celebration begin. Hello. क्या आप जानते हैं सहर शेख की फेम? क्या आप जानते हैं सहर शेख?